Hello dear student, after the life process and nutrition, today we will study the mode of nutrition. What is the mode of nutrition and on the earth which type of mode of nutrition is present. तो सबसे पहले अगर अपन बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन की हमने डेफिनेशन लास्ट देख ली थी. व्हाट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ फूड एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड एज ए न्यूट्रिशन. एंड न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में किस किस टाइप से होता है, मतलब कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी के अंदर. सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरा आता है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? In autotrophic mode of nutrition, animals or organisms synthesize their own food by the process of photosynthesis, either photosynthesis or chemoautotrophism with the help of chemical energy. Heterotrophic mode of nutrition, they are not able to synthesize their own food. They are depends upon ready-made food. Ready-made food means they are depends upon other organisms or plant. Autotrophic mode of nutrition is further categorized into two categories. First is a photoautotrophous and second is a chemoautotrophous. What is the mean by the photoautotrophous? Photo means light, auto मतलब self and trophous मतलब build-up करना. तो मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फूड को सिंथेसाइज करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है इनको, और दोज विच इज यूटिलाइज द सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड एज ए फोटोऑटोट्रॉफस. फोटोऑटोट्रॉफस के अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस कैटेगरी के अंदर जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट्स, मतलब जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जो सनलाइट को यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरियाज एंड सम एनिमल्स. और कुछ एनिमल इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जैसे कि प्रोटिस्टा जो है, गोल्डन एल्गी, या फिर इसके बाद में अपन बात करें यूग्लिना इज इन दिस कैटेगरी. कीमोऑटोट्रॉफस की अगर बात करें तो कीमो का मतलब होता है केमिकल, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफस का मतलब बिल्डअप करना. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये केमिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं. केमिकल एनर्जी मींस दे ऑक्सीडाइजिंग द सब्सटेंस, एंड ऑक्सीडाइजिंग करने से जो उनके अंदर बॉन्डिंग टूटती है, ब्रेकडाउन होता है, तो उनकी वजह से जो उनको एनर्जी ऑब्टेन होती है वो एनर्जी का ही यूटिलाइज करते हैं. Those which utilize the chemical energy for prepare their food, like sulfur oxidizing bacteria, iron oxidizing bacteria, and nitrogen fixing bacteria, methane bacteria, that all are the bacteria which utilize the energy from the chemical substances by the process of oxidizing them. These all are the mode of nutrition. Basically, we categorize the mode of nutrition on two categories: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic means they build up their own food by the process of photosynthesis or chemosynthesis. Heterotrophic, they are depends upon the ready-made foods. They cannot synthesize their own food. Next lecture we will study the chemoautotrophs. After the mode of nutrition, we studied the photoautotrophs in detail. What do you mean by the photoautotrophs? Photo मतलब lights, auto मतलब self, trophos मतलब build up करना. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. They utilize the sunlight with the help of chlorophyll molecules and convert the inorganic molecules like carbon dioxide and water or other substances in organic molecules like glucose. And there is two types of photosynthesis reaction. One is an oxygenic photosynthesis and other is an anoxygenic photosynthesis. What is the difference between the oxygenic and anoxygenic photosynthesis? In the oxygenic photosynthesis reaction, oxygen is evolved. Oxygen is produced by product in which carbon dioxide and water is utilized as inorganic molecules and convert into the glucose molecules, and oxygen is released by product.
इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका रिडक्शन होता है और वाटर का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है बाय प्रोडक्ट। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो एनऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरिया या सल्फर बैक्टीरिया, जो सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड का यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करती है, मतलब इसका यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होती है। यहाँ पर सल्फर गैस जो होती है वो बाय प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज होती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। Then after we will study the chemoautotrophs. After the photoautotrophs, we will study the chemoautotrophs. What do you mean by the chemoautotrophs? कीमो मतलब केमिकल, ऑटो मतलब सेल्फ, एंड ट्रॉपस मतलब बिल्डअप करना। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि केमिकल से अपनी एनर्जी को ड्राइव करते हैं। तो कौन से केमिकल से एनर्जी ड्राइव करते हैं और कैसे ड्राइव करते हैं, लेट्स सी। दे डू नॉट गेट द एनर्जी फ्रॉम द सन। ये सन से एनर्जी को ऑब्टेन नहीं करते हैं, ये सनलाइट का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। अगर ये सनलाइट का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन केमिकल एंड ऑक्सीडेशन एजेंट। इसके अंदर स्पेशली ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडेशन एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। दे गेट द एनर्जी बाय रिमूविंग द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, मीथेन एंड सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे कि सपोज कुछ ऐसे हम बैक्टीरिया जो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिमूव होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है उसका यूटिलाइजेशन वो बैक्टीरिया करते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कीमोऑटोट्रॉफस के, जैसे कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसके बाद में मीथेन बैक्टीरिया, और लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कीमोऑटोट्रॉफस। बट यहाँ पर अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसका ऑक्सीडेशन करता है। लेट्स सी। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट कर रहा है वाटर प्लस सल्फर के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो सल्फर है, पहले इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच था, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर ये जो सल्फर है इसका यहाँ पर रिडक्शन हो गया है, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद में उस बॉन्डिंग से जो एनर्जी रिलीज हुई है उसका यूटिलाइज ये बैक्टीरिया कर रहे हैं। देन आफ्टर ये सल्फर जो है इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। अगेन ये ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये जो सल्फर ये दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ सल्फ्रिक एसिड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। तो these all are the example of oxidizing bacteria, sulfur oxidizing bacteria. After study the autotrophic mode of nutrition, let's study the heterotrophic mode of nutrition. Hetero means different and trophic means food. The organisms they are depends upon ready-made food, either on animals, organisms or plant, or both of them are called as a heterotrophic mode of nutrition. The example of heterotrophic mode of nutrition is all the human beings, all the animal categories, and most of the bacteria, fungi and non-green plants are included in this categories. Heterotrophic mode of nutrition के अंदर कुछ कैटेगरीज आया है जिसको अपन ने यहाँ पर डिस्टिंक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड के बेसिस पर। जैसे कि हर एक एनिमल का जो नेचर ऑफ फूड होता है वो अलग अलग होता है। अगर अपन बात करें सबसे पहले हर्बीवोरस की, तो हर्बीवोरस एनिमल्स ईट्स प्लांट्स। एग्जांपल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउज एंड गॉड। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं बेसिकली वो प्लांट सेल का यूटिलाइज करते हैं, और प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनिमल्स को ज्यादा हार्ड एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है ये। तो एनिमल्स के अंदर इसलिए एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, रूमिनेंट एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ज्यादा लॉन्ग होती है ताकि सेलुलोज को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। दूसरी अगर बात करें सेकेंड कैटेगरी इज कार्निवोरस। द कार्निवोरस आर द एनिमल्स
विच फीड ऑन फ्लैश, ये फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फ्लैश के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो प्रोटीन का और कार्ब्स का पार्ट होता है। तो एग्जांपल की जब बात करें जैसे लॉयन एंड टाइगर, तो लॉयन एंड टाइगर के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस, बिकॉज इनके अंदर जो प्रोटीनियस पार्ट होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्बेबल होता है, वो डायरेक्टली इजिली डाइजेस्टेबल होता है, इसलिए इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होती है। ओमनीवोरस की अगर बात करें तो ओमनीवोरस आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर फीड अपॉन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए अगर बात करें जैसे कि डॉग, ह्यूमन एंड कॉकरोच, ये सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही टाइप की सेल्स का यूटिलाइज करते हैं। देन फोर्थ नंबर पे आता है डेट्राइटिवोरस। डेट्राइटिवोरस आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर फीड अपॉन डेट्राइटस और डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और ये जो होते हैं जैसे कि अर्थवर्म इसके अंदर आता है। फिफ्थ नंबर पे आता है आपका सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ब्लड, ये जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फ्रेश ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर बात करें लीच एंड फीमेल मॉस्किटो एंड बैट ब्लड वैम्पायर, ये सब इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं। जनरली ये एक्सोपैरासाइट कहलाते हैं हमारी बॉडी के, बिकॉज ये हमारी बॉडी के बाहर की तरफ सर्वाइव करते हैं। इनमें स्पेशली अगर बात करें फीमेल मॉस्किटो, तो फीमेल मॉस्किटो को अपने एग को नरिश करने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी मॉस्किटो ब्लड का यूटिलाइज नहीं करते हैं, ओनली फीमेल मॉस्किटोज जो होती है वो ब्लड यूटिलाइज करती है फॉर नरिश टू देयर एग्स। देन अगर बात करें फ्रिगविवोरस, फ्रिगविवोरस आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर फीड अपॉन फ्रूट्स, it's only depends upon fruit like a parrot and monkeys which only eat the fruit only. Then after insectivorous, insectivorous are the in these categories some animals and plants are included, like insectivorous, there some organisms are completely insectivorous and some organisms are partially insectivorous. जैसे कि अगर बात करें बैट, लिजार्ड एंड स्पाइनी आंट ईटर, दे आर द कंप्लीटली इंसेक्टिवोरस organisms, and some plants which are included in partially organisms like picture plant and Venus flytrap. In this plant categories, the plant is scarcity of nitrogen. To complete the nitrogen requirement, they utilize the insect. वो इंसेक्ट को इसलिए यूटिलाइज करते हैं बिकॉज वहाँ जिस एरिया के अंदर वो उगते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की स्कार्सिटीज होती है, नाइट्रोजन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होता है। और अगर हम बात करें इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट का जो आउटर शेल पार्ट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन काफी अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस बन जाते हैं, बट दे आर नॉट टोटली इंसेक्टिवोरस, they perform the photosynthesis, but for the nitrogen they require they utilize the insect. Thank you. Next we study the heterotrophic mode of nutrition. Mode of nutrition की इसके बाद हम बात करेंगे। Thank you.